learners. Today I'm going to tell you about the SQL of Access. As you know, I have already told you about the several commands of Access, but still you want to revise it, so I am creating it again. And please learn how to create the table, how to create the form, how to use the SQL query. So let's start. Suppose you want to create the file table, then you can create it two ways, in design view or in worksheet view. So I am telling you about in design view. Suppose you want to create the course table, then here you have to write the course ID, then course name, text, and make it a primary key. A primary key is the key through which you identify the record. Here is course. Name it course. Now you want to create the form. So create and press form. It will create your form. Now you write the you have to save it. Yes, course form. Clear? Now you want to enter the information in course form. So open the form and do the entry. Clear? This way you can make a entry. Now you can see the entry here. This is the entry. Same way I have made the student and teacher. And you can make a form of a student also. So create and form. Just you have to press the form, and teacher and create form. Just you have to do this. Now close it. Save. Yes. What? Teacher form. Then close the student and make yes student form. Clear? So this way you have created the teacher and student form. Now you want to enter the teacher information. For that you have to write Anjani Singh, subject physics. Clear? Then again Asutosh
the course already enter the information. So this way I have made the 3 forms. Now you want to create course file through SQL query or subject file. So create query design, then course, add, close, view, SQL view. Here you have to write create table subject SID auto number not null, create table subject SID auto number not null primary key, then subject name, sub name, it should be a text. Now run. Auto number. Okay, not taking auto number, delete it and run. तो आपकी सब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्रिएट क्यूरी किसकी है? सब्जेक्ट की है। यहाँ पे मतलब हम क्यूरी से भी टेबल को बना सकते हैं। सब्जेक्ट क्यूरी, क्लियर। अब हम इसमें चाहते हैं कि आपस में रिलेशन हो जाए। उसके पहले हम क्रिएट बता चुके हैं और अब अपडेट बता देते हैं। अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमें एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। तो क्रिएट करेंगे, क्यूरी डिजाइन करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे, व्यू करेंगे, एसक्यूएल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज। अब सब्जेक्ट में वैल्यूज क्या होगी? पहला डाला और SCIENCE, सब्जेक्ट में लिखेंगे हिंदी, ठीक, रन कर दिया, यस। इंसर्ट ई नहीं लिखा है, ठीक है। एक वैल्यू ऐड हो गई, तो सब्जेक्ट में क्या आ गया? ये देखिए हिंदी आ गया। अब इसी में हिंदी की जगह क्या कर दें? हम दूसरा कर दें, टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा, यस। अब लेकिन सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा कोर्स है ये भी बताना चाहेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? कोर्स आईडी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे आए, क्रिएट में, क्यूरी में, सब्जेक्ट में, ऐड में और एसक्यूएल क्वेरी में आए और यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल
सब्जेक्ट क्या किया, ऐड कॉलम, कौन सा कॉलम ऐड किया, CID नंबर, ठीक, और रन कर दिया। तो क्या होगा, सब्जेक्ट में एक कॉलम CID बन जाएगा। अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये हमारा साइंस का सब्जेक्ट है कि आर्ट का सब्जेक्ट है। अब कोर्स में क्या डाला था हमने, देखिए कोर्स में डाला था 1 फॉर साइंस एंड 2 फॉर आर्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने डाल दिया 1, तो ये साइंस का हिंदी हो गया। और जब अब मान लीजिए इसी में कोई और कॉलम ऐड किया नोट्स, और दिया टेक्स्ट, मान लीजिए दे दिया 20 कैरेक्टर, ठीक। तो ऐड कॉलम करेगा, इसको रन करें, ठीक। अब क्या किया, सब्जेक्ट में एक कॉलम और ऐड हो गया, ये देखिए नोट्स। लेकिन हमें लगा कि अरे ये तो गलत ऐड हो गया, तो अब इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रॉप कैसे करेंगे, ऐड की जगह ऑल्टर कर देंगे, ऑल्टर या ड्रॉप कॉलम नोट्स, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें ड्रॉप लेता है कि नहीं लेता है। क्यूरी टू ऑल्टर्स सब्जेक्ट, ओके, ठीक, रन तो हो गया। अब इसमें देखिए क्या लिया इसने, नोट्स चेंज नहीं किया, तो ऑल्टर कर लेगा लेकिन डिलीट नहीं करेगा। ऑल्टर लिया तो था, ये रहा। ये कॉलम एस एड्रेस 35 चेंज कर देगा उसको, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे टेबल सब्जेक्ट ऑल्टर कॉलम नोट्स टेक्स्ट, अब इसमें लिखा 35 कर दो, बाय डिफॉल्ट 50 होता है, तो 35 कर देंगे तो क्या करेगा, इसको वो चेंज कर लेगा। अब ये देखिए सब्जेक्ट ये खुला, इसमें डिजाइन व्यू में जब आप जाइएगा तो देखिएगा इसकी वैल्यू नोट्स की 35 हो गई, ठीक है। तो वो ऑल्टर से चेंज कर देगा। अब हमको चाहिए अपडेट, ठीक, क्या चाहिए, सब्जेक्ट में अपडेट चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉप से क्या होता है कि पूरी टेबल ही हट जाती है। ड्रॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप, इसको तो बंदी कर दे, नो चेंजेस नहीं हटाने, क्रिएट किया, क्यूरी डिजाइन किया, सब्जेक्ट किया, ऐड किया, इसको क्लोज किया, इसमें व्यू में गए, एसक्यूएल किया, ठीक। अब किया ड्रॉप टेबल, फिर से बना लेंगे ड्रॉप टेबल सब्जेक्ट और सेमीकोलन, और इसको रन किया तो क्या करेगा, सब्जेक्ट टेबल हटा देगा, है ना। तो ड्रॉप से क्या होगा, पूरा हट जाएगा। अब ड्रॉप
कॉलम अगर हम देखें कॉलम कोर्स में क्या है, कॉलम सी नेम है, ड्रॉप कॉलम सी नेम फ्रॉम कोर्स। अब इसको डिजाइन व्यू में रन करके देखो, सिंटैक्स एरर ले रहा है, नहीं करेगा कॉलम को ड्रॉप कोर्स, नहीं लेगा, कॉलम को ड्रॉप नहीं करेगा। तो अब क्या करें, ड्रॉप हो गया, अपडेट कर ले, कोर्स में गए, अपडेट यहाँ कुछ है ही नहीं है, स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट में हमने मान लो इंसर्ट कमांड भी बता दें आप लोग को, क्रिएट बता दिया, इंसर्ट बता दें, क्रिएट क्यूरी डिजाइन। अब मान लो इंसर्ट करना है टीचर में, ऐड किया, क्लोज किया, क्यूरी डिजाइन में गए, यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज, ब्रैकेट में लिखा, तो इसमें देखना पड़ेगा किसका नाम नहीं गया है, काफी नाम तो जा चुका है, चलो कोई बात नहीं, फिर और डालते हैं। अरुण श्रीवास्तव कहाँ तक गया, 6 तक। अब यहाँ पे डाला 7, अरुण कुमार, अरुण फिजिक्स। ठीक, अब इसको रन करते हैं, तो एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा टीचर में, ये देखिए अरुण कुमार फिजिक्स। ठीक है, इंसर्ट हो गया, अब अपडेट करना है हमको, तो इसको सेव कर दें, इंसर्ट टीचर, अब अपडेट करना है टीचर को, क्रिएट किया, क्यूरी किया, टीचर लिया, ऐड किया, यहाँ पे गए, एसक्यूएल लिया, यहाँ पे लिखा अपडेट टीचर सेट वैल्यू, सेट एस लास्ट नेम, टीचर लास्ट नेम है ना, टीचर लास्ट नेम equals to sing where teacher last name equals to कुमार। ठीक, क्या करेगा, इसको रन करें तो एक रो अपडेट कर देगा, टीचर में देखो अरुण कुमार था ना, अरुण सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपडेट कमांड हुआ, तो क्रिएट हुआ, इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ। अब सेलेक्ट कमांड करते हैं, सेलेक्ट को डिटेल में बताएंगे, आज बस हम सिंपल बता देंगे, अपडेट टीचर,
क्योंकि सेलेक्ट में बहुत ज़्यादा कमांड है। सॉर्टिंग उसी में होगी, उसी में हैविंग होगा, और भी ऑप्शंस के डिफरेंट क्लॉज होते हैं जो बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब डिलीट बता दें। अब मान लीजिए हमको एक हटा देना है, तो स्टूडेंट में गए, ऐड किया। स्टूडेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए अनिमेश को हटा देना है, या अपडेट कर देना है, या डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा क्यूरी में डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एफ नेम इक्वल्स टू अनिमेश। ठीक, इसको हटाना है तो हमको रन करना पड़ेगा एफ नेम अनिमेश। 4 रो ले रहा है तो हम नो दे देंगे। क्यों 4 रो ले रहा है? स्टूडेंट में एफ नेम नहीं है क्या, एस एफ नेम है ना, तो वेरिएबल नेम गड़बड़ हो गया इसलिए ले लेंगे स्टूडेंट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट देयर एस एफ नेम। ठीक, एस एफ नेम इक्वल्स टू अनिमेश। यस किया। अब क्या करेगा, स्टूडेंट में से अनिमेश को हटाना चाहिए। ऐसे नहीं ले रहा है तो अब हम एस एफ नेम छोटे में लिख के देखते हैं। क्रिएट पूरी डिजाइन स्टूडेंट ऐड क्लोज है ना, डिजाइन व्यू एसक्यूएल में दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस एफ नेम इक्वल्स टू अनिमेश। स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं हो रही, नहीं तो दिया सेमीकोलन। अब इसको डिजाइन में रन करते हैं। अब हो गया। ठीक, तो वेरिएबल नेम जैसे दिया वैसे ही देंगे तभी होगा। ठीक, ये देखिए एनिमेश चला गया। तो आज हमने बताया इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड क्रिएट। इन चारों को खूब अच्छे से याद कर लीजिए कि कैसे लिखा जाता है उसका सिंटैक्स, और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है और उसमें टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। टेबल दो तरह से क्रिएट होती है, एक डिजाइन व्यू में, एक सिंपल डेटा शीट व्यू में। अब डेटा शीट व्यू में कैसे होती है हम बता देते हैं एक बार फिर से। क्रिएट टेबल। ठीक, अब ये जो आया ये डेटा शीट व्यू है। यहाँ पर हमने दिया सब्जेक्ट बनाया था ना, तो ये दे दिया एस नेम, या सब दे दिए सब्जेक्ट। ठीक, और यहाँ पे दिया सब्जेक्ट, यहाँ पे दिया सब आईडी। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, हमने दिया हिंदी। ठीक, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस,
फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह से सिंपल हम बस टाइप करके इसको बना सकते हैं। तो इसको सेव किया एज अ सब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा कि हमें सब्जेक्ट को कोर्स करना है, तो यहाँ पर रीनेम किया, लिया CID। अब ये सारे हमारे साइंस में भी हैं, आर्ट्स में भी है, तो ये 1 हो गया, 1 1 1 1 1। ठीक, और फिर यही कॉपी होगा, आगे भी देना पड़ेगा। हिंदी, यहाँ पे क्या होगा, 2 आर्ट्स हो जाएगा, इंग्लिश 2 हो जाएगा, मैथ्स 2 हो जाएगा, आया साइंस तो है ही नहीं आर्ट्स पे। ठीक, साइंस लेंगे कि तो आर्ट्स की अलग हो जाएगी और साइंस की अलग हो जाएगी। अब आर्ट्स में और जो सब्जेक्ट होगा SST है, तो ये हो जाएगा, है ना, और जो भी होगा पॉलिटिकल साइंस होगा, जो होगा वो उसमें ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आज का खत्म होता है। कल हम लिंकिंग और एडवांस सेलेक्ट कमांड बताएंगे।